Hello everyone, Namaskar. So in today's video, we'll talk about a one-year strategy for UPSC 2027. Now this is going to be a detailed plan that I'm going to share with you. But before that, I want to talk about some large-scale principles also. So whenever we're planning, whenever we're taking up a very big project like this, there have to be some principles we have to follow. So in today's video, I'll give you the principles, then I'll show you the plan and tell you how to use it. प्रिंसिपल्स में there'll be two levels of principles. One are the strategic principles, जो हाई लेवल प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं ताकि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल पाए. Two are tactical, practical चीजें that you can implement in an everyday life so as to get the best efficiency. Right. So let's get started with principle number one. The first and foremost principle over here is slow is smooth and smooth is fast. जल्दबाजी नहीं करनी है. You cannot be of the opinion that I'm going to try and save some hours. I'm only going to read the important chapters of this book. I'm only going to do this, that, XYZ. Shortcuts मत ढूंढो. It is going to take time, and if you give it the time, your life will become easier down the line. This is something to help you visualize this. Civil services exam is मतलब इसकी preparation जो है it goes slowly for a long time and then suddenly it feels that I've made a lot of progress, because a lot of you will keep feeling this way for the first 3 to 6 months कि बहुत कुछ कर लिया. I've read polity, I've read geography, I've read economy, but I don't remember these things. तो एक core principle that I want you to keep in mind over here is, in trying to save hours you will end up wasting years. Attempt बर्बाद मत करना घंटे बचाने के चक्कर में. Moving on to the next. Now, principle number 2 over here is that right direction needs calibration. माने कि I want to work hard, but ऐसे ही नहीं, क्योंकि फरारी लेके दिल्ली से कानपुर जाओगे तो चाहे कितना भी तेज चला लो, बॉम्बे नहीं आएगा. And that is what I want you to keep in mind. You may be the most efficient or the most hardworking student, but if you're working in the wrong direction, it will all mean nothing. Therefore, you have to talk about the right direction. You have to understand the right direction, and that at times needs calibration. Calibration का क्या मतलब है? मुझे बार-बार सेंस चेक मिल रहा है कि अच्छा, I'm working in the right direction. सिर्फ एक बारी डायरेक्शन चूज करके और फिर काम करते रहना नहीं है. मंथली, वीकली बेसिस पे you have to keep calibrating. Now for this, obviously, जो हमारे mentorship courses हैं, वो काफी हेल्पफुल रहते हैं. But in general, you can also do this through previous year questions if you're preparing by yourself. More on the courses later, but for now, the idea is simple. फरारी लेके दिल्ली से कानपुर जाओगे तो कितना भी तेज चला लो, बॉम्बे नहीं आएगा. Now, coming to principle number 3. While you're preparing for civil services exam, you will get distracted. There will be a lot of things that will seem like कि अच्छा मैं वो कोर्स ले लूं मेरा हो जाएगा, अच्छा मैं वो PDF मिल जाएगी मेरा हो जाएगा. The grass will always appear greener on the other side, but what you have to keep in mind is that the grass is greener where you water it. जहां पे घास में पानी डालोगे वहां पे it will flourish. And therefore, you need to stay focused. You need to stay distraction free, because the cost of distraction is in years. एक दिन का प्रीलिम्स होता है, इफ आई एम डिस्ट्रैक्टेड वो एक दिन का प्रीलिम्स फेल होता है, एंड देन फिर जर्नी एक साल बढ़ जाती है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, आई वांट टू स्टे फोकस्ड. बहुत सारी चीजें आएंगी, ऐसा लगेगा वो कोर्स में यहाँ ये वो, बट इफ यू स्टे फोकस्ड, इफ यू स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, you will find success. Principle number 4. Don't let perfect be the enemy of good. Idea is simple. A good plan that you can follow 90% of the time is much better than a perfect plan that you follow only for 3 days. एंड ये चीज बहुत बार हमें रोकती है कि भाई हम सोचते हैं आई विल गेट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, आई विल गेट द बेस्ट रिसोर्सेज, सब कुछ मैं इकट्ठा कर लूंगा और फिर उसके बाद मैं राइट नाउ आई एम इन फेब्रुअरी, आई विल टेक मार्च एंड अप्रैल टू डू ऑल ऑफ दिस कि भाई ऑप्शनल का रिसर्च कर लेंगे, ये कर लेंगे, एंड देन मई एंड जून से आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. Eventually what happens with these sorts of plans is none of it happens. You end up in June, and then June में आप बोलते हो कि चलो अच्छा एक महीना I will search for these things and then I will start from July. Eventually करते करते you end up in October, and then people start asking कि is it possible to clear prelims in 6 months? Because this is a very very regular question that I get around October and November. तो please keep in mind, आप जब शुरू कर दो, जैसे शुरू कर दो, it is good. I'll be sharing a good plan with you. Now, good plan का idea यहाँ पे क्या है? Some of you will have to change it. Because if I'm saying, let's say 10 days के लिए आप पॉलिटी पढ़ो, अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड है, आपका पॉलिटी का बैकग्राउंड है, पॉल साइंस से,
So then you might not require those 10-15 days. Maybe आपको history के लिए ज़्यादा समय लगेगा. So those sorts of practical things you will have to change. But what I'm going to share with you is a good plan. Finally, all subjects are not equal. This is the final principle that I want you to keep in mind. कि भाई there are static subjects and then there are dynamic subjects. Static subjects आपके वो होते हैं history, polity, geography, economy. These are subjects that don't change too much year on year. These are subjects जहाँ पे 70% questions are repeated. माने कि if I'm talking about economy, then banking operations, RBI, your government securities, government budgeting, इन पे बार बार सवाल आते हैं. पॉलिटी की बात करें तो पार्लियामेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट, मनी बिल्स, इन सब पे बार बार सवाल आते हैं. ज्योग्राफी की बात करो, एटमॉस्फेयर, ओशियानोग्राफी, मतलब क्लाइमेटोलॉजी इन जनरल, मतलब बार बार जब इन चीजों पे सवाल आ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स में, तो my job is to focus on getting the easy marks first, and therefore my job is to focus on the static subjects first. Static subjects मेरे कौन से? History, polity, geography, economy. These are subjects that don't change all that much over time. There is a current affairs का element कि अब कोई constitutional amendment हो गया है तो naturally I also have to do current affairs. But if you look at the other subjects, which are the more dynamic ones, which is science and tech, environment, international relations, यहाँ पे 70% आपका करंट रिलेटेड मटेरियल ही आता है. सो बिकॉज ऑफ दैट इस पे मैं बाद में फोकस करूं, बेस मेरा यहाँ पे बिल्ड होगा. इधर काम मेरा हो गया है तो आई कैन अश्योर माई सेल्फ आई हैव मेड गुड प्रोग्रेस. क्योंकि ये चीज जो है अगर आपने लेट्स से अभी कर ली, इन द नेक्स्ट 3 months यू हैव कवर्ड साइंस एंड टेक. By the time your exam comes, science and tech will have changed and you will have to do it all over again. So that's the idea. Now, for those of you that have made it this far in the video, congratulations, because एक बहुत सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है. फोकस इज वॉट यूर मिसिंग. बहुत बार ऐसा लगता है हमें कि भाई मेरे पास टाइम अगर और होता तो मैं पता नहीं क्या कर लेता. इट इज नॉट अबाउट टाइम, इट इज अबाउट फोकस. एंड इफ यू हैव मेड इट दिस फार इन द वीडियो, you have more focus than a lot of people who are preparing, and that is your competition and you are ahead of the competition. So now let's talk about the plan की हम बात करेंगे. तो इसमें let's start with this. I've shared multiple sheets in this plan. I'll walk you through each and every one of them. सबसे पहले हम देखेंगे macro view. Right, macro view के बाद there are these 3 resources का tabs. NCRTs कौन सी हैं, prelims की resources क्या हैं, mains के क्या हैं, and then daily plan. तो macro view से हम शुरू करेंगे because this is giving us the big picture of how this plan is going to progress. Now here the number one tactical thing that you have to keep in mind is कि भाई आपको ब्रेक्स भी लेने हैं. तो एवरी सो ऑफन यूल सी कि भाई प्रीलिम्स के बाद एक हफ्ते का पूरा आपको ब्रेक है. शुरू में आराम से चीजें काफी चल रही हैं, देन रिवीजन के लिए 3-4 हफ्ते यहाँ पे दिए गए हैं. देन बीच में आपको दिवाली ब्रेक, buffer week around new year, all of these sorts of breaks are built into this plan with the very simple idea that आप इंसान हो and इंसान कभी ना कभी भटकता है, distract होता है. I want to stay focused, but that does not mean I will never get distracted, and that's the idea. When I have buffer weeks, when I have these sorts of tactical breaks in the middle, it makes my life easier. क्योंकि होता क्या है that कभी ना कभी मेरे से कुछ छूटेगा, and वो छूट अगर गया तो एक तो वी हैव दीज बफर वीक्स, एंड देन इन द डेली प्लान यूल सी कि एवरी संडे ऑलमोस्ट वी हैव गिवन यू अ ब्रेक. राइट, होली, दिवाली एंड ऑल इज एक्स्ट्रा. एवरी संडे इज अ ब्रेक. देयर इज नथिंग इन दिस प्लान दैट यू आर सपोज्ड टू डू ऑन अ संडे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ ना कुछ छूटता है, लाइफ गेट्स बिजी. इफ यूर इन कॉलेज तो देन सम एक्टिविटी आ गई. इफ यूर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो देन लाइक यू नो समटाइम्स वर्क गेट्स हैवी. तो इन सच अ केस आई हैव टू हैव अ बफर. तो ये तो था हमारा पहला टैक्टिकल आइडिया. नाउ सेकंड थिंग व्हाट यू नोटिस इज कि हमने सारे जीएस के सब्जेक्ट्स एक बार करे हैं. पॉलिटी, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राइट. एंड देन विल कम बैक एंड डू दीस थिंग्स ऑल ओवर अगेन. होता क्या है, पहले मैं एक बार बेस बनाऊंगा. ओवर हियर विल बी फोकसिंग ऑन द एनसीईआरटीज. तो कौन सी एनसीईआरटीज, विल कम टू इट. बट फर्स्ट आई फोकस ऑन डूइंग द एनसीईआरटीज फॉर 2 to 3 months. उससे मेरा एक बेस बन जाता है. आई एम नॉट अनकंफर्टेबल कि भाई मतलब पता नहीं क्या ही बता दिया. वंस आई हैव दैट बेस, नाउ आई गो टू द रेफरेंस बुक्स. उसी चीज को मैं और डेप्थ में करूंगा. देन द एडवांस फेज वेयर आई एम गोइंग टू मेंस का स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. तो यहां तक हमने क्या किया था, वी हैव रिपीटेड हिस्ट्री, एनवायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एंशिएंट मेडिवल. तो देन ये जो प्लान इस तरीके से बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज दिस प्लान इज इन सिंक विद आवर यूपीएससी एसेंशियल कोर्स.
द बेसिक आइडिया इज वी फॉलो द सेम पेडागोजी इन दिस कोर्स एज वेल, जहां पे पहले हम बेसिक करते हैं विच इज फाउंडेशन एनसीईआरटी मटेरियल, देन वी कम टू द रेफरेंस बुक्स, देन वी डू मेंस। तो इससे इन बिल्ट एक आपका यहाँ पे ऑलरेडी रिविजन चल रहा है कि भाई पॉलिटी मैंने यहाँ किया, पॉलिटी मैंने दोबारा यहाँ किया, पॉलिटी फिर मैंने अगली बार यहाँ पे एक और बार कर लिया, राइट? पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, these are all interrelated subjects, and because I am doing them in this circular fashion, तो every 2 months 3 months में एक बार मेरा वो सब्जेक्ट any which way रिवाइज हो ही जाता है। if you're following this plan, by the time you come to prelims in 2027 you will have reviewed the same subjects 4-5 times at least। 4 से 5 बार आप इसको कर पाओगे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया हियर। थोड़ा रेपिटेशन हमें चाहिए बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड दिस प्लान इज बिल्ट इन दैट मैनर। नाउ अब आते हैं एक बार डेली प्लान पे। डेली प्लान में यूल सी दैट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राइड टू हेल्प यू हैव स्मार्ट प्लानिंग। व्हाट इज स्मार्ट प्लानिंग? स्मार्ट प्लानिंग इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइमली। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव ट्राइड टू डू ओवर हियर। स्पेसिफिक कैसे है कि लेट्स से हमने स्पेसिफिकली आपको बोला है क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, राइट? तो प्लान हमारा जो शुरू हो रहा है वैसे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 16th of February, बट फर्स्ट 2 weeks we have not given you a lot of load or any heavy stuff over here for the very simple reason कि एकदम से expecting somebody to study 8 hours or maybe even 5 hours when they are not used to it is not practical. So you have to build up that muscle also. तो फर्स्ट 2 weeks में there will be baseline tests कि भाई हम आपको कुछ कुछ चीजें बोलेंगे कि भाई ये चीज देख के आओ। तो देर आर सम फ्री इनिशिएटिव्स दैट वी हैव शेयर्ड ओवर हियर। तो बिगिनर्स गाइड टू यूपीएससी प्रेप एंड एनसीईआरटीज वाला ये जो कोर्स है हमारा, दिस कैन बी फाउंड ऑन courses.upscprep.com। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा? स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मेंस रेडी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए कई सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी, राइट? एनवायरमेंट का मास्टर क्लास। तो a lot of these things we have curated for you, but coming back to यहां पे, तो अब जैसे ही आप स्पेसिफिक चीजें करने पे आते हो एवरी डे में मे बी 30 to 40 पेजेस से ज्यादा हमने देने की कोशिश नहीं करी है। एंड इन द फर्स्ट फेज वेयर वी आर जस्ट डूइंग एनसीईआरटीज मे बी इवन लेस देन दैट, दिस मे बी 25 पेजेस एट मोस्ट, 30 पेजेस। और एनसीईआरटीज आपको पता ही है कि भाई देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स, इमेजेस एंड सो मच specific, and this is measurable. Have I done this today? Yes or no? If you can answer that question in yes or no, that is what is meant by measurable. Have I achieved today's target? Yes. Now which brings us to the other point, which is this achievable? तो हमने कोशिश यही करी है कि आपको शुरू में इतना ही लोड दिया जाए which you can cover maybe in 2 to 3 hours of study. तो first couple of months, if you're preparing for 2027, you want to get into the groove. जो मैंने पहला बोला था, रूल नंबर 1, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। जल्दबाजी अभी से नहीं करनी है, मुझे गेम सेट करना है ताकि मैं लंबी रेस का घोड़ा बन सकूं, राइट? सो दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज मेजरेबल, दिस इज अचीवेबल, दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट, विच ब्रिंग्स अस टू रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में हमारी ये जो सारी एनसीईआरटीज हैं, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू सब्जेक्ट वाइज, एंड देन एट द सेम टाइम अगर आप कहीं से जाके खरीद रहे हो तो क्लास 9th 10th 11th एंड 12th की ये एनसीईआरटीज आपको चाहिए। नाउ देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आल्सो व्हिच इज व्हिच ओल्ड एनसीईआरटीज शुड आई गेट? तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ द ओल्ड एनसीईआरटीज आल्सो व्हिच वी हैव मेड स्पेसिफिकली। तो ये जो सारी एनसीईआरटीज हैं, तो इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी आप देखोगे क्लास 11th की 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ दिस इज आल्सो समथिंग दैट इज रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में भी ये चीज काम आती है, एंड नॉट जस्ट दैट, ये आपका मेंस में भी काम आती हैं। दीज आर सच इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। सो देयरफॉर जब हम डेली प्लान पे बोल रहे हैं कि भाई ये एनसीईआरटी हमको करनी है, पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ऑल्सो, तो दीज आर ऑल्सो रेलेवेंट, राइट? कहा? स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant and timely. स्मार्ट गोल्स में स्पेसिफिक हमने देख लिया, वी हैव गिवन यू स्पेसिफिक चैप्टर कि भाई ये चैप्टर करना है। मेजरेबल, हैव आई डन दिस, यस और नो? तो अगर 2 चैप्टर हैं, मैंने 2 चैप्टर 3 चैप्टर करे कि नहीं करे, आई कैन से यस और नो। इज इट अचीवेबल?
3 चैप्टर दिन में, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो देन लाइक मे बी यू वांट टू गिव अ फर्दर डाउन अटेम्प्ट, बट दिस इज अ वेरी अचीवेबल टारगेट दैट वी हैव गिवन। इतना पुश थोड़ा करना चाहिए अपने आप को, आगे चल के और पुश करोगे, बट दिस इज जस्ट टू हेल्प यू बिल्ड द मसल। इज इट रेलिवेंट? यस, फॉर एवरी स्टेज ऑफ द एग्जाम। एंड इज इट टाइमली? नाउ टाइमली का कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज व्हाट आई ट्राई टू शो यू इन द मैक्रो व्यू कि भाई इफ वी आर फॉलोइंग दिस प्लान, अगर ये प्लान के हिसाब से आप ये एनसीईआरटीज कवर करते हुए चलते हो, तो लेट्स से ये जो पॉलिटी की हमारी एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, राइट, दिस एनसीईआरटी, इट इज अबाउट 200 प्लस पेजेस, बट अगेन साइज में छोटी है, बहुत सारी ऐसे इमेजेस हैं, बहुत सारी ऐसे इसमें इमेजेस हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस एनसीईआरटी I think you can read very comfortably in 1 week. And that is what has happened over here. Indian Constitution at work, you have 5 days to cover this NCERT and उसके बाद भी एक बफर आपके पास है। तो टाइमली का मतलब यहाँ पे यही है that this plan will help you complete the entire UPSC journey का preparation before you sit for prelims. And therefore, आप देखोगे कि भाई पहले बेसिक्स हमने किए NCERT, then reference books, देन मेंस, ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड बिफोर यू गो टू जनवरी, जहां पे फिर से हम प्रीलिम्स के बारे में फोकस्ड तैयारी करेंगे। तो ये जो फेजेस में तैयारी चल रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ एक साथ कर लिया, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स इन लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू विल बी अवेयर ऑफ कि व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, श्योर, बट अगर एक लेवल मैं और ऊपर जाऊं तो व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट दीज आर द एरियाज ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। फर्स्ट लेवल था कि भाई इट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। सेकंड, यहां तक डायरेक्ट सनलाइट आती है ऑन समर सोल्स्टिस। थर्ड लेवल पे अगर मैं जाता हूं तो विच आर द एरियाज ऑन द अर्थ विच हैव मोर देन 12 आवर्स ऑफ सनलाइट ऑन द 22nd ऑफ जून? तो यहां पे क्या हुआ, हमने सेम कॉन्सेप्ट को अब नाउ अप्लाई कर दिया। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, स्लोली लेवल बाय लेवल आई हैव टू बिल्ड माय अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट हैपेंस ओनली व्हेन आई हैव द बेस लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही नहीं पता है तो कहां पे 22 जून को 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट होगी, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू आंसर, राइट? दैट इज व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ अ फेज वाइज सिचुएशन हैज गॉन डाउन। रिसोर्स लिस्ट आप प्रीलिम्स की भी यहाँ पे पूरी देख सकते हो। यहाँ पे एक स्पेशल चीज अब है, देयर इज अ सीसैट का वर्कबुक दैट वी हैव शेयर्ड, राइट? तो ये वर्कबुक जो है, यहाँ पे आपको सीसैट का सारा प्रैक्टिस मटेरियल, थ्योरी मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, सो दैट यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट सीसैट so long as you're practicing adequately. At the same time, I've also shared prelims GPT. So this is a custom prelims के लिए bot that I have created. I will also be working on a mains GPT similarly. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, this is something that can help you really track your progress. But that's for you to try out. ये सारी चीजें आपको इस शीट में मिल जाएंगी। इस शीट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And from there, what I want you to do is file, make a copy. If you don't make a copy, you will not be able to edit this sheet because, again, this is the same sheet that everybody will see. Now, coming to UPSC Essential, this is a course that we have designed in keeping with all of the principles that I shared. जो सारी चीजें मैंने बोली थी, slow is smooth, smooth is fast, focusing on the right things, the right direction, the grass is greener where you water it. Everybody nowadays will say कि भाई mentorship दे रहे हैं, mentorship दे रहे हैं. We focus on getting you to deliver outcomes. जब तक मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है तो मेंटरशिप है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? तो वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट यू स्टे ऑन ट्रैक बाय अस फॉलोइंग अप विद यू। तो इस कोर्स की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो सारी। At present, there is a 10% discount that is going on this course. You can use this code. This is, I think, till your 24th या 25th of February. Exact dates आपको बता दी जाएंगी, communicate कर दी जाएंगी on all of our platforms. तो if you're interested in checking out this course, you can visit courses.upscprep.com. एंड यहाँ पे हमने एक डिटेल्ड इसका शेड्यूल भी डाल दिया है, ब्रोशर भी आ जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अबाउट दिस कोर्स, इफ देयर आर एनी डाउट्स लेट मी नो। अगर प्लान शीट कुछ नहीं समझ आई, कोई भी दिक्कत आपको लगी इस वीडियो में, तो प्लीज रीच आउट टू अस इन द कमेंट, वी विल गेट बैक टू यू। ऑल द बेस्ट ऑन योर यूपीएससी जर्नी।